મોરબીમાં દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલ કેમ છે અન્ય શાળાઓ કરતાં અલગ? માત્ર શિક્ષણમાં જ નહીં પરંતુ અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિકાસની અપાય છે પૂરી તક. મોરબી સિરામિક સહિતના ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે પહેલેથી જ વિકસિત છે અને હવે મોરબી શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ સતત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. આજે મોરબીમાં મોટા ભાગના અભ્યાસક્રમો ઘર આંગણે જ ઉપલબ્ધ છે અને જાણીતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ મોરબીમાં કાર્યરત થઈ છે. આવી જ એક અનોખી શાળા છે દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલ, જ્યાં બાળકોને સર્વાંગી વિકાસની પૂરી તક આપવામાં આવે છે. માત્ર શિક્ષણ માટે જ નહીં, બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલ છે મોરબીની બેસ્ટ સ્કૂલ. દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ મિલિંદ કાલિસ્કર વિશેષ વાતચીતમાં જણાવે છે કે તેઓ 20 વર્ષથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે કાર્યરત છે અને દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલ સાથે તેઓ વર્ષ 2019થી જોડાયેલા છે. જે શાળાની ખાસિયતો અંગે તેઓ જણાવે છે કે અહીં માત્ર એકેડેમિક જ નહીં, નોન એકેડેમિક એક્ટિવિટી માટે પણ પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે છે. શિક્ષણ સાથે દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની રસ રુચિ પ્રમાણેના ક્ષેત્રમાં આગળ વધે તે માટે શાળા પરિવાર સતત જાગૃત રહે છે. દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલમાં શિક્ષકોની ભરતી માટેના ચુસ્ત નિયમો છે અને તે નિયમોને આધીન જ શિક્ષકની ભરતી કરવામાં આવે છે, જેથી શાળા સાથે જોડાયેલ દરેક શિક્ષક નિપુણતા ધરાવે છે. પછી તે ભાષાના શિક્ષક હોય કે સંગીતના અથવા તો સ્પોર્ટ્સના. પ્રતિદિન શાળામાં શિક્ષણ કાર્ય ઉપરાંત 1 કલાક બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે ફાળવવામાં આવે છે, જેમાં એક દિવસ બાળકને સંગીત માટે, બીજા દિવસે ડાન્સ, ત્રીજા દિવસે સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી, જ્યારે ચોથા દિવસે કોમ્પિટિટિવ સ્પિરિટ ડેવલપ થાય તેવા પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. કારણ કે ધોરણ 1 અને 2માં અભ્યાસ કરતું બાળક પોતાના રસ રુચિ અંગે સ્પષ્ટ હોતું નથી, જેના રસના ક્ષેત્રને જાણીને તે ક્ષેત્રમાં બાળક આગળ વધે તેવું વાતાવરણ પૂરું પાડવામાં આવે છે. તો કોરોના કાળ બાદ બાળકો શિક્ષણમાં નબળા હોવાની ફરિયાદો સામાન્ય બની રહી છે, ત્યારે દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલે ખાસ સોલ્યુશન શોધી કાઢ્યું છે, જેમાં ધોરણ 3માં સેશન પ્રારંભ કરતા પૂર્વે બાળકને ધોરણ 1 અને 2નો પાયો નબળો રહી ગયો હોય તેની તૈયારી કરાવાય છે અને બાદમાં ધોરણ 3નું શિક્ષણ કાર્ય કરાવવામાં આવે છે, જેથી બાળકનો પાયો નબળો ન રહે અને તે પૂરતો ગ્રોથ કરી શકે. તો બોર્ડની પરીક્ષામાં 20 દિવસ પૂર્વે સિલેબસ શરૂ કરાવાય છે. એટલું જ નહીં, સરપ્રાઇઝ ટેસ્ટ પણ લેવાય છે, જેથી બાળકો એલર્ટ રહે અને માનસિક રીતે તૈયાર રહે કે ગમે ત્યારે પરીક્ષા લેવાઈ શકે છે. किसी भी स्कूल की जो आइडेंटिटी है वो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस और अन्य प्रवृत्ति में आप क्या करते हो उसके ऊपर से बात होती है. अगर हम दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की बात करें तो एकेडमिक क्षेत्र में हमने ऑलरेडी साबित कर दिया कि हमारे कुछ बच्चों ने साइंस ओलंपियाड में इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट और सेकंड रैंक लेकर ये साबित किया कि यहाँ जो पढ़ाई दी जाती है या शिक्षा प्रदान की जाती है वो किसी भी अन्य क्षेत्र के लिए एक कॉम्पिटेंट लेवल की शिक्षा प्रदान की जाती है. आने वाले समय की अगर बात करें, जो हमें दूसरी स्कूलों से अलग साबित करता है वो ये है कि आने वाले समय में जब नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट होने जा रही है तो बच्चों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार करने के लिए हमने हमारी स्कूल में क्रीड क्लासरूम शुरू की है. वो क्रीड क्लासरूम के अंतर्गत बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक्स, आईओटी और ड्रोन का हम लोग उनको ज्ञान देंगे और उसके लिए एक्सटर्नल फैकल्टीज़ यहाँ आके बच्चों को पढ़ाएगी. इतना ही नहीं, इसके अलावा हम लोग हर एक क्षेत्र में बच्चा किसी न किसी रूप से प्रवीण बने ये हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं और उसी के लिए अलग अलग तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं. मैं आपके माध्यम से और अपनी चेयर से मोरबी की जनता से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है वो किसी भी बच्चे को प्रदान की जा सकती है. शुरुआत कंडीशन ये है कि वो बच्चा वो शिक्षा को सही तरह से सही सिस्टम के मुताबिक पाए. और दूसरी बात कि एकेडमिक डेवलपमेंट इज़ ए गारंटी टू ब्राइट करियर. इसीलिए बच्चों को हम 21st सेंचुरी स्किल की भी सिखाते हैं, जिसमें नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल टॉप पर रहती है. तो जो शिक्षा को समझेगा वही DWPS को पाएगा. देखिए जी, अब मैं बताऊं तो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल हमेशा कुछ न कुछ नया
सिस्टम या नया तरीके से कार्य करने के लिए अपने आप में फेमस हो चुकी है। आप जानते होंगे कि पिछले 2 साल से हम लोग अपने बच्चों को नदाबेट बॉर्डर ले जाते हैं, जहां सोल्जर्स को राखी बांधी जाती है और ये राखी बच्चे खुद लेके आते हैं या खुद यहाँ पे बनाते हैं। तो एक जो बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना किस तरह से डेवलप हो, ये एक प्रयास रहता है। इसके अलावा बच्चों को हम लोग साइंस सिटी ले गए थे और अटारी बॉर्डर भी ले गए थे। तो राष्ट्र प्रेम प्लस साइंटिफिक अप्रोच, ये दोनों बातें इसमें समाविष्ट हो जाती है और यही एक अच्छी शिक्षा का सबूत है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जो कि मोरबी का एक अच्छा फेमस स्कूल है, ये जब आप राजकोट हाईवे पर बानीवाड़ी आती है, अजंता से आगे मोरबी से आते हुए, तो बानीवाड़ी के पीछे जिस रास्ते पर आप आएंगे, जो पहली ही सीढ़ी है, वहाँ पर आपको दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल हमारा स्थित है और पिछले 5 साल से हम लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। स्कूल थोड़ा सा मोरबी से आउटर में हो गया है और क्योंकि हम पूरे मोरबी को, वाकानेर को और आसपास के क्षेत्र को, नीची मंडल, ऊंची मंडल या मालिया का थोड़ा सा क्षेत्र ये कवर करते हैं, इसलिए स्कूल ने पूरी वेल मेंटेन बसेज लगाई हुई हैं और वो बसेज ही हमारे सारे बच्चों को मोरबी से, टंकारा से, लजई से स्कूल में लेके आती हैं। अब उन मोरबी या वहाँ से वो जो बसेज आती हैं, उन सबको वेल इक्विप्ड किया गया है। अगर हम बात करेंगे कि वो बसेस के अंदर भी कैमरे हैं जिसको हम यहाँ पर मॉनिटर करते रहते हैं और इसी सुरक्षा दृष्टि से हमने स्कूल के अंदर भी लगभग 50 कैमरे लगाए हुए हैं। हर जगह को सीसीटीवी सर्विलेंस में लिया गया है कि एक एक बच्चे पर जहां तक मैक्सिमम हो सके नजर रखी जा सके कि बच्चे कहां पर हैं इस समय, कहां पर नहीं है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए वो सारे सुरक्षा उपकरण यहाँ पर मौजूद हैं और वो बसेस से बच्चे यहाँ पर सारे पहुँचते हैं। तो पहला ये कि ये एकमात्र ब्रांडेड स्कूल है। ब्रांडेड स्कूल की जब हम बात करते हैं जिसकी शाखाएं ज़्यादा होती हैं, 100 से ज़्यादा शाखाएं इसकी भारत और विदेश में मौजूद हैं ऑलरेडी, तो हम एकमात्र ब्रांडेड स्कूल हैं। और ब्रांडेड स्कूल होने के नाते हम 30 से ऊपर बच्चे एक क्लास में रखते नहीं हैं, ताकि टीचर का एक पूरा ध्यान, मैंने यहाँ पर ऐसे भी स्कूल देखे या फिर और कहीं पर भी ऐसे स्कूल देखें जहाँ पर क्लासरूम ना होकर कथा रूम हो जाता है। 30, 40, 50, 60 बच्चे अगर एक क्लास में होंगे तो टीचर के लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग उस श्रेणी में ना होके, उस भीड़ में या उस रेस में ना होके थोड़े लेवल पे अपने आप को सीमित रखते हैं कि दूसरों से अलग इस ग्रुप में चल सकें, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे वो म्यूजिक की फील्ड हो, बच्चों को नदाबेद बॉर्डर ले जाना हो, बच्चों को स्वर्ण मंदिर अमृतसर के दर्शन कराने हो, बच्चों को अटारी बॉर्डर ले जाना हो, साइंस सिटी ले जानी हो, या विभिन्न टाइम पर, जैसे अभी हमारा एक बच्चा चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के गेम्स में आप देखिए अंडर 9 में स्टेट चैंपियन बना है जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो जबकि बहुत सारे बच्चे जानते नहीं हैं, फिर भी हमारी अपनी ये कोशिश रहती है किस प्रकार से बच्चों को उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कराया जा सके, स्वर्णिम विकास जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। हमें उसके लिए आपने स्कूल में देखा होगा, आप तो सब जगह जाते रहते हैं, बड़े पत्रकार हैं, तो उसमें ये रहता है कि वो बच्चे कितने भी कहीं बाहर रहते हैं, मतलब लगता नहीं है कि रिसर्च चल रहा है कि स्कूल चल रहा है। मैं भी दूसरे स्कूलों में काम करके आया हुआ हूँ, 12 साल मुझे हो गए, तो हमने ये नोट किया कि क्या उन पे ऐसा कुछ अंकुश लगाया जाए। तो हमने यहाँ पर क्लास पास सिस्टम रखा हुआ है, जो क्लास पास सिस्टम हमने JNV यानी कि जवाहर नवोदय से कॉपी किया है। तो जो चीज़ अच्छी मिलती है उसको कॉपी करने में भी कोई हर्ज नहीं है। एक समय में 2 ही बच्चे क्लासरूम से बाहर जा पाएंगे, वो कोई भी विषय हो, पानी पीने जा रहे हैं बच्चे या वॉशरूम जा रहे हैं या किसी भी और काम से जा रहे हैं, ताकि ना तो क्लास डिस्टर्ब हो सके, ना उन बाहर वाले बच्चों की वजह से दूसरे स्कूल डिस्टर्ब हो सके। तो पास बनाए हुए हैं, बच्चों को वो पास दे के रखते हैं। विदाउट पास कोई भी बच्चा हमारा बाहर क्लास से, यानी कि बेवजह बिना टीचर की परमिशन के नहीं होता है। या कि ज़्यादा डिमांड में आए और वो छोटे बच्चे जो होते हैं वो चलने में, बहुत लंबे सफ़र करने में समस्या महसूस करते हैं, तो उसको देखते हुए हमारे प्रधानाचार्य सर ने पिछले साल ये डिसीजन लिया था कि मोरबी 2 में हमने एक अपना हैप्पी एंजल बनाया था, जो पिछले साल ही काफ़ी सफल रहा। अभी हैप्पी एंजल हमारा स्कूल इस समय राज कोऑपरेटिव सोसाइटी सोरडी रोड पर कार्यरत है, जो कि नटराज फाटक से 200 मीटर की दूरी पर मात्र। यहाँ पे दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल मोरबी में पढ़ता हूँ, 5 साल से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में रुचि है, स्पोर्ट्स क्रिकेट में रुचि है, और यहाँ पे स्कूल की तरफ से पूरा सपोर्ट होता है कि जहाँ जहाँ खेलने जाना हो वहाँ पे स्कूल भी सपोर्ट करता है। पूरे सप्ताह में 2 पीरियड होते हैं स्पोर्ट्स के, और मुझे क्रिकेट में बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग तीनों ऑलराउंडर। कोच के टीचर जहाँ ऐसे कहते हैं कि अपने आप से खेलो, बाकी सपोर्ट तो हम करेंगे ही। इसके पहले वाले साल में दिसंबर में हम भोपाल गए थे, वहाँ पे जीत के आए थे।
उधर 6 टीम थी और हम जीते थे, तो उसमें सबसे अच्छे बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट कैप्टन, बेस्ट फील्डर, सारे अवार्ड हमें ही मिले थे। में सारे टीचर सब बच्चों पे पूरा सही ध्यान देते हैं, सबको एक समान ही मानते हैं और सबको वेल एजुकेशन देते हैं। मैं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ से 4 साल से पढ़ रही हूँ। मैं अभी 10वीं में पढ़ रही हूँ और मेरे स्कूल से सारे अध्यापक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं और मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाते हैं। कि परीक्षा के लिए अलग से रेफरेंस बुक, स्टेबैक्स और ट्यूशन भी लगवाए जाते हैं और यहाँ पे सब जगह की फैसिलिटी मिलती है और सब अच्छे से सपोर्ट करते हैं कि बोर्ड्स में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है। सब पिछले 3 सालों से मैंने देखा है यहाँ पे आर्ट, डांस और म्यूज़िक का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव दिया जाता है और यहाँ पे साथ में अभी लास्ट ईयर से कोडिंग भी चालू हुई है। आपको अगर पता हो तो अभी फ्यूचर में क्रेड स्कूल की बहुत चर्चा हो रही है, तो वो भी अभी करवाया जा रहा है अच्छे से। कोडिंग एक माध्यम है जिससे आप कंप्यूटर के बारे में और जान सकते हैं। आप कंप्यूटर की मदद से आप कोई वेबसाइट बना सकते हैं। आप अगर आपको ऐप बनाना है तो आप ऐप बना सकते हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं कोडिंग में, और ये अगर आप कर लो तो फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और ज़्यादा मदद मिलती है ऑलरेडी यहाँ से। और आप दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहेंगी इस स्कूल के बारे में, यहाँ पे किस तरह से वो आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं दूसरे बच्चों को यही कहना चाहूँगी, अगर वो ये स्कूल ज्वाइन करे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये स्कूल बहुत अच्छी है, तो उनको ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। एकेडमिक के साथ और चीज़ें भी उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगी। मैं अंडर 9 जैवलिन थ्रो में फर्स्ट आया हूँ। मेरी एज 8 है। मैंने 50 मीटर 77 अनिश पावर। नाम अनिश है, मैं स्टैंडर्ड 4 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है। मैं अंडर 11 जैवलिन थ्रो में 10th रैंक आया है। 1 आवर।